Hello viewers, this is the third session of not-for-profit organizations. Today we are going to discuss about the income and expenditure account. What is the meaning of an income and expenditure account? Income and expenditure account is a nominal account. It is prepared in the same manner as we prepared trading account and profit and loss account in case of a profit-seeking entity. So as we prepare profit and loss account, in same way it is prepared, and the net result of income and expenditure is profit or loss. If incomes are more than expenditure, that is called surplus or profit, and if incomes are less than expenditure, that is called deficit. तो डेफिसिट कब होगी? जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं. सरप्लस या प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी इनकम्स ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे, तो उस केस को हम इसमें सरप्लस कहते हैं. So what are the features of income and expenditure account? Income and expenditure account is a nominal account in nature. तो income and expenditure is nominal account. Nominal account कौन से होते हैं? Those accounts which shows the profits, losses, expenses and income. तो income and expenditure account also show profit or loss of the organization at the end of the year. The next feature is, as income and expenditure account is nominal account, therefore while preparing this account we follow the rule of nominal account. So what is the rule of nominal account? We have already learned in the class 11th. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. So it means when we prepare nominal account or income and expenditure, profit and loss or trading account, in all cases losses and expenses are debited and incomes and expenses are credited. It means in income and expenditure account, losses and expenses we show on debit side and incomes and profits we show on credit side. Next point is, it is prepared on accrual basis. So students, while preparing final account of profit seeking entity, we pass all the adjustments regarding outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, like that. In same manner here, while preparing income and expenditure, we pass all the adjustments. Accrual basis means expenses of current year to be shown in current year, maybe the expenses paid or not paid. Incomes of current year to be shown in current year, maybe the income received or not received. Next point is, in this account only items of revenue nature are recorded. It means in income and expenditure we will record only revenue items. Revenue item means which benefits is likely to be received in 1 year only. Means ऐसे आइटम जिसका फ़ायदा हमें सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है, वो रेवेन्यू आइटम्स कहलाती है. इट मीन्स ऑल आइटम्स ऑफ द कैपिटल नेचर नॉट रिकॉर्डेड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम को दिखाएंगे, कैपिटल आइटम को नहीं बताया जाता है. दीज आइटम्स आर इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग income and expenditure account. Next point is, this account is prepared on accrual basis as we prepare trading account and profit and loss account or a profit seeking entity. As such, adjustments relating to current years are taken into considerations. Adjustments like depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses. It means when we prepare income and expenditure, we need to make all the adjustments of current year. In this account, non-cash items are also recorded. तो आपको पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम केवल कैश आइटम लिखते हैं, लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हम इसमें कैश एज वेल एज नॉन कैश सभी टाइप के आइटम्स को दिखाएंगे. जैसे डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लाइक दैट. Next, seventh point is, while preparing income and expenditure account, only current year's incomes and current year's expenses are recorded. It means in income and expenditure account, we show only current year's incomes and current year's expenses. But if you remember, in receipt and payment, we show the receipt of current year, maybe the income of current year, last year or next year. But from receipt, we will show only current year's income. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो पूरी इनकम्स
उसमें जितनी भी रिसिप्ट है सब दिखाई जाती है, चाहे इस साल की इनकम है, चाहे पिछले साल की है, चाहे नेक्स्ट ईयर की। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल आप करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंस ही दिखाएंगे। इट मीन्स, और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से, all items of incomes and expenses which do not relate to current year excluded। तो जो आइटम्स करंट ईयर की नहीं है उसको हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे, उसको दिखाएंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस अकाउंट इज नॉट स्टार्टेड विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज स्टार्टेड विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, but income and expenditure account is not started with opening balance of cash or bank। net result of this account shows surplus or deficit। तो closing balance जो income and expenditure का है that will show either surplus or deficit। तो surplus कब होगा? excess of income over expenditure is surplus। अगर हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो वो हमारा सरप्लस होगा, और excess of expenditure over income is called deficits। Thank you। तो from receipt and payment account, how to prepare income and expenditure? We all know that in receipt and payment account we have two side, receipt side and payment side। तो क्या रिसिप्ट्स में जितनी भी जो रिसिप्ट्स होती है वो सारी की सारी इनकम होगी क्या? या जो पेमेंट्स में, जो साइड पेमेंट्स में जितने भी आइटम्स दिए वो क्या सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेज होंगे? ऐसा नहीं है, बिकॉज वी डिवाइड द रिसिप्ट्स इन टू, नंबर 1 रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड नंबर 2 कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या हुआ? जो कोई भी हमारी इनकम जो हमें मिली है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। और कैपिटल रिसिप्ट्स का एग्जांपल है जैसे इफ़ वी सेल दी एसेट्स एंड वी रिसीव कैश, या इसके अलावा भी लेगेसी मिली है आपको, या लाइफ मेंबरशिप फी है, वो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वो कैपिटल रिसिप्ट्स के होते हैं। तो रिसिप्ट के 2 पार्ट हो गए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो सिमिलरली पेमेंट साइड जो है उसके भी 2 पार्ट हो गए, रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो रेवेन्यू पेमेंट्स आर जनरली पेमेंट्स ऑफ द एक्सपेंसेज, एंड कैपिटल पेमेंट्स जस्ट लाइक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह इस टाइप से अगर कोई पेमेंट करते तो कैपिटल पेमेंट कहलाता है। तो अब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट, अब फाइनल जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट बनाते समय इनको आप कहाँ बताओगे? तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है वो एज इट इज़ हमारी इनकम नहीं होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है एज इट इज़ हमारी इनकम नहीं होगी। तो रेवेन्यू जो रिसिप्ट है उसमें हम पास करेंगे एडजस्टमेंट्स, तो लाइक एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सेट्रा। तो जब आप एडजस्टमेंट पास करोगे तो फिर वो रिसिप्ट हमारी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में बताएंगे। तो दैट विल बी अवर इनकम एंड इट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। और जितनी भी जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट का जो भी इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने कोई एसेट बेची और पैसा आया है तो आपकी एसेट कम हो जाएगी, तो बैलेंस शीट में उस एसेट को अपन नहीं बताएंगे। या हमने मान लो किसी से पैसे उधार लिए, लोन लिया, बैंक से लोन लिया, पैसा आया, तो कैपिटल रिसिप्ट होगी बैंक लोन लेने से, तो बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसको अपन बैलेंस शीट में बताएंगे। तो अब रिसिप्ट को अपन 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसिप्ट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी और कैपिटल रिसिप्ट है वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो इन सेम वे पेमेंट को अपने 2 पार्ट में बांटा, रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। तो रेवेन्यू पेमेंट एज इट इज हमारा एक्सपेंस नहीं होता है, तो रेवेन्यू पेमेंट में भी अपन क्या करेंगे? वी विल पास सम एडजस्टमेंट। तो आफ्टर पासिंग ऑल एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, then your payment will be converted into the expenses, and expenses are shown on debit side of income and expenditure account, and effect of capital payment goes to balance sheet। capital payment का मतलब जैसा एग्जांपल आपने बैंक लोन वापस रीपे किया, इफ़ वी रीपे द बैंक लोन तो उस समय आपका वो लोन माइनस हो जाएगा, दैट विल बी नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। तो एज ए होल तो रिसिप्ट्स वी हैव टू, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में जाएगा उसका इफेक्ट। पेमेंट के भी 2 पार्ट हो गए, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। तो रेवेन्यू पेमेंट का जो इफेक्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और कैपिटल का पेमेंट है वो इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। तो बाकी जैसे बिजनेस के जो एक्सपेंस होते हैं, सैलरी, वेजेज, लाइक दैट रेंट, वो भी आपके एनपीओ के भी वो एक्सपेंस होते हैं। या जो बिजनेस की जो इनकम होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, वो भी सेम
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी इनकम्स होती हैं, पर कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो एग्जाम्पल्स ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर सब्सक्रिप्शंस वी रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, एंट्रेंस फीस एक्सेट्रा. ये सब हमारी जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जाम्पल है. कैपिटल रिसिप्ट्स के एग्जाम्पल एंडोमेंट फंड, लेगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशंस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स लाइक बैंक लोन एक्सेट्रा. तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स के हैं. तो ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो हमने फाइनल अकाउंट में नहीं थे आपके, जैसे एंडोमेंट फंड है, लेगेसीज है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, स्पेसिफिक डोनेशंस है. दीज ऑल आर रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स. तो कैपिटल रिसिप्ट का जो इफेक्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा. रेवेन्यू पेमेंट्स. तो रेवेन्यू पेमेंट्स मीन्स वी मेक द पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेज और मंथली एक्सपेंसेज लाइक सैलरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, रेंट, विजिज, चैरिटी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस. तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेज के हैं, और दीज ऑल आर द रेवेन्यू पेमेंट्स. और रेवेन्यू पेमेंट जितने भी है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए जाते हैं. कैपिटल पेमेंट. तो कैपिटल पेमेंट का एग्जाम्पल बेस्ट है परचेजेज ऑफ द एसेट्स. इफ़ वी परचेज एसेट्स एंड इफ वी परचेज इन्वेस्टमेंट. Purchase of asset, maybe you purchase furniture, you purchase building, you purchase a piece of land, if we purchase investments, etc. So these all are capital payments. And if we repay bank loan, the repayment of all the loan are also in your capital payments. तो ऐसे हम जो इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इसके एज ए होल मतलब 4 पॉइंट हो गए. रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट कैपिटल पेमेंट. तो अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू पेमेंट किस में जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट का इफेक्ट किस में जाएगा, बैलेंस शीट में. इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो दिखाएंगे, लाइबिलिटी घट गई तो उसको माइनस कर देंगे. एसेट खरीदी बढ़ी तो उसको अपन ऐड करेंगे, और अगर एसेट हमने बेची तो उसको हम लेस करेंगे. तो इन दिस वे फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट सॉल्व अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट, हाउ वी just prepare a income and expenditure account. Thank you very much.